head function and tail function. These two are very important parts. Now, import, let me just copy it out. Now see, what we have done, we have provided a series. ठीक है, अब सीरीज के अंदर हमने डायरेक्टली एक डेटा पास करा दिया. इंस्टेड ऑफ गिविंग इट लाइक अ लिस्ट, we can do it in the other manner, like we can create a list, और list create करने के बाद we can provide this list there and we can simply import L here. जैसा भी आपको सही लगे, you can do it. But here we have passed the data directly inside a list, that is 1, 2, 3, 4, 5. Or suppose we pass 6 also and 7 also, so that it is easy for you all. Now, because we have passed so many things, so 7, A, B, C, D, E, F, so G and H. Again we have run, we can see similar answer we are getting. Now what it does, head function क्या करता है, it takes the first 3 elements, जो first 3 elements होंगे ये सिर्फ उन्हीं को लेगा with their index, उनके index के साथ ही हमेशा first 3, because हमने 3 पास करा है. Suppose I pass 1, ठीक है, and then I run it, so you can see सिर्फ single element, जो सबसे पहला element होगा उसको लेगा. Head means कि top और tail means कि bottom. तो tail means कि end से और head means कि beginning से. So that is beginning and end. So head means beginning and tail means end. So if we write, like suppose head as 5 and then we run it out, so we can see from the beginning 5 elements that are there will be printed. Got it? So this is how this head works. So it returns first 3 elements because here 3 was passed as the parameter of head function. After that, coming to the tail function. Now tail function, what it does, the last 3, like here we have passed tail 3, so the last 3 elements will be returned for this function. Let's check it out here. So instead of head, if I write tail 5 I have done, and I'll run it, and we can see the last 5 elements will be written. Suppose I write tail 1, so last 1 element will be returned. Now see, I haven't mentioned anything inside this tail. This is the thing to remember. ये आपको याद रखना है हमेशा, that if we don't pass anything, ठीक है, अगर हम इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं तो by default it takes 5 as the value. वो 5 ही लेगा अगर हम उसमें कोई वैल्यू पास नहीं करें. Suppose I delete these 2 elements. Sorry. Now I'll run it. So you can see from A till E, 1 to 5, everything has been printed. So by default, चाहे head हो, चाहे tail हो, if you are not passing any parameter, अगर आप इस function में कोई parameter pass नहीं कर रहे हैं, then by default it will take 5. If it is head, so top 5, starting from first to 5, and then if it is tail, so from end of 5, all it will take out. ठीक है, ये दोनों क्लियर है, हेड एंड टेल? यस सर. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर. यस बेटा. सर अगर मान लीजिए मैं कोई बीच से कोई वैल्यू उठानी पड़े, मतलब कि अगर हमें 3 उठाना है बस, तो फिर क्या करेंगे? तब बेटा उसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उसके लिए इटरेशन करना पड़ेगा. बट दीज हेड एंड टेल ना, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ओनली, जब हम इसके फर्स्ट मॉड्यूल में थे, लेट मी ओपन इट दैट. ये तो ये किस चीज के लिए था, ये हमारा है कि डेटा अगर हमें चाहिए, लाइक सपोज यू हैव सॉर्टेड योर डेटा. अब हेड एंड टेल कैसे काम आता है, जस्ट थिंक आउट कि फर्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, मेरे पास एक एक्सेल शीट है, ठीक है. सपोज आई एम हैविंग एक्सेल शीट ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. नाउ
That Excel sheet is in haphazard manner, means roll number 49 फर्स्ट पे है, फिर 30 वाला सेकंड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इस तरीके से मीन्स ऑर्डर्ड नहीं है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है. व्हाट यू विल बी डूइंग, पहले आप उसको एक ऑर्डर में सेट करेंगे. ओके, सो ईदर दैट ऑर्डर कैन बी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, लाइक कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं वो सबसे ऊपर रहे, जिसके सबसे कम आए वो नीचे रहे, जो सबसे कम है ऊपर. मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये दो आपके ऑर्डर हो गए. एंड व्हेन यू हैव चोजन द ऑर्डर, अब ये हेड एंड टेल वहां पे काम आएगा. बिकॉज जब आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगे तो लाइक, या तो हियर लाइक 1 2 3 4 5 वी आर हैविंग. सो इफ वी आर टेकिंग द टेल ऑफ इट, लेट मी अनडू दिस. हाँ, इफ वी वांट द लार्जेस्ट, अब इसको हम कह सकते हैं कि असेंडिंग है, दैट मीन्स द लार्जेस्ट मार्क इज एट द लास्ट. ठीक है, सो व्हाट आई एम सिंपली गोइंग टू डू कि हमें चाहिए कि जो हाईएस्ट पाया हो. ओके, तो वी आर नोइंग कि हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्टिंग की हुई है उसकी अपने डेटा की, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारा लास्ट में ही आएगा लार्जेस्ट डेटा, तो हमने टेल 1 कर दिया. या अगर सपोज दो चार बच्चे भी ऐसे जिनके मार्क्स सिमिलर हो सकते हैं, सपोज वो ऐसे 6 बच्चे थे, ठीक है, या जितना भी डेटा आप देखना चाहें, तो हमने वहां पे देखा तो हमें लास्ट के 6 मिल गए कि अच्छा हाँ ये डेटा है. बट वी आर सीइंग कि 7 इज द लार्जेस्ट, तो वील टेक टेल एज 1. तो हमें सिंपली अपना जो मींस मैक्सिमम डेटा है वो मिल गया. एंड उसके बाद सपोज हमें कि फर्स्ट पे हमने सॉर्टिंग की और हमें पता है कि फर्स्ट पे हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है, तो हम उसे हेड के थ्रू निकाल लेंगे. तो हम हेड अगर लगा देते हैं तो हेड के थ्रू हमें ये मिल जाएगा. क्लियर है? तो हम ये काम जो कर रहे हैं ये हम एक्चुअली डेटा में कर रहे हैं, एंड दिस इज अ वेरी बिग डेटा. हम उसमें बीच का कोई मीन्स ऐसा डेटा नहीं होता जब हम कोई डेटा पे वर्क कर रहे होते हैं. हाँ, जब बीच के डेटा होते हैं तो उसके लिए हमें फिर प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं. ठीक है, क्लियर है? यस सर. Okay. Now coming to accessing data from series with indexing and slicing. अब हम series में slicing भी करेंगे और indexing भी. Let's copy this. Now you can see कि अब ये हमने क्या किया, पहले एक सीरीज ली, उसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसके बाद इंडेक्स हमने ABCDE डाल दिया. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्रिंट, सबसे पहला क्या प्रिंट हो रहा है, एस ऑफ जीरो. ठीक है, एस ये हमारा एस है, सीरीज का एस में मीन्स ये सारी चीजें, ये सारा का सारा चीज एस में जा रहा है. तो एस ऑफ जीरो पे क्या है, तो जीरोथ इंडेक्स पे जो भी डेटा रहेगा वो हमारा फेच हो जाएगा. तो आउटपुट में देखिए एस ऑफ जीरो पे हमारा 1 प्रिंट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ जीरो पे 1 है. देन नेक्स्ट वी आर सेइंग प्रिंट एस ऑफ, नाउ ब्लैंक पहले है, मतलब कि ये आई थिंक सो पता है ना, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप. यस सर. हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट इसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं कुछ भी. ठीक है, स्टार्ट हमने मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ठीक है, स्टार्ट मेंशन नहीं करना मीन्स कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमको डेटा लेना है. देन वी आर सेइंग कहां तक जाना है, 3 तक. सो 3 इज एक्सप्लिसिट, ये एक एक्सप्लिसिट वैल्यू, दैट मीन्स ये 3 तक नहीं जाएगा, ये 2 तक जाएगा. सो टूथ पोजीशन पे क्या है हमारा, सेकंड पोजीशन पे क्या है, 0 पे हमारा 1 है, 1 पे हमारा 2 है, एंड 2 पे हमारा 3 है. तो दैट मीन्स 1 2 3 प्रिंट होंगे. तो आप ये देखिए 1 2 3 हमारे प्रिंट हो गए. आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेइंग कि आप स्टार्ट करिए -3 से. ठीक है, -3 से आप स्टार्ट करिए, एंड उसके बाद आपको जाना कहाँ है, एंड तक. ठीक है, एंड तक जाना है, और एंड हमने मेंशन नहीं किया, मींस हमने कुछ मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स ये एंड तक जाएगा, ब्लैंक छोड़ा हमने इसे. तो -3 क्या होगा, ये होगा -1, ये होगा -2, और ये होगा -3, दैट मीन्स 3 से लेके एंड तक जाएगा. तो आप देखिए 3 से लेके एंड, दैट इज 5 तक गया. ये स्लाइसिंग समझ में आई कि शैल आई एक्सप्लेन इट अगेन? क्लियर है स्लाइसिंग? किसी को डाउट स्लाइसिंग में? नाउ व्हाट इफ आई वांट समथिंग लाइक दिस.
अब इसका मैं रिजल्ट से पहले इसका क्या रिजल्ट आएगा? सर पूरा आ जाएगा। देखा, पूरा आया। नाउ अब सपोज मैं ये कर देता हूं, अब क्या आएगा? सर दो 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 करके आएगा, मतलब कि एक छोड़ के दूसरा अल्टरनेटिव आएगा। ये देखा, 1 3 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी स्लाइसिंग कर लेंगे, जो भी हमारी सीरीज है, ठीक। आफ्टर दैट, नाउ देन क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम एनडी एरे। अब एनडी एरे का यूज करके अब रिट्रीव डेटा यूजिंग लेबल एज इंडेक्स। अब हम लेबल को इंडेक्स की तरह यूज करेंगे। कैसे? ये सब हमारे लेबल्स हैं, ठीक है, और ये हमने इंडेक्स में पास करा रखे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 0 1 2 3 करके इस तरह से इंडेक्स है, तो हमने उसको लेबल्स दे दिए। देन हमने क्या किया कि पी डी डॉट सीरीज 1 2 3 4 5, इसको कॉपी कर लेते हैं। सो हाँ, लेट मी कॉपी दिस आउट। नाउ अब हो क्या रहा है इसमें, हमने क्या किया, एक सीरीज है 1 to 5 तक का डेटा पास किया एंड 5 इंडेक्स पास किए, ए बी सी डी ई। नाउ वी वांट ओनली सी एंड डी टू बी प्रिंटेड, ठीक है। सी और डी पे जो है सिर्फ वही प्रिंट हो, तो हम कह सकते हैं एस ऑफ, फिर उसके अंदर फिर से देखिए, सॉरी, फिर एक और ब्रैकेट लगा है। देखिए, एक ब्रैकेट बाहर का है, एक ब्रैकेट अंदर लगा है, तो एस ऑफ, फिर अगेन ऑफ सी एंड डी, ठीक है। तो सी और डी हमें चाहिए, सपोज हमें सी डी एंड ई भी चाहिए, तो हमने ई भी लगा दिया। ये हमारा सिंटैक्स कंप्लीट। अब उसके बाद आप देख सकते हैं अब हमारी 3 वैल्यू आ गई, कि हम अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्शन करना चाहते हैं कि हमें सिर्फ वही पर्टिकुलर इंडेक्स की ही वैल्यू, सपोज यहाँ इंडेक्स हमारे 1 2 3 4 5 होते हैं, तो हमें 3 और 5th इंडेक्स पे जो है वो चाहिए होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम इस तरीके से इंडेक्स का यूज करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक। देन आफ्टर दैट रिट्रीव डेटा फ्रॉम सिलेक्शन, ये इस तरीके से हमने किया। अब क्या है, देर आर 3 मेथड्स ऑफ डेटा सिलेक्शन। डेटा को सेलेक्ट कैसे करना है? एक है एलओसी। एलओसी का मतलब होता है लोकेशन, ठीक है। एलओसी का मतलब है लोकेशन, तो गेट्स रोज और कॉलम्स विद पर्टिकुलर लेबल्स फ्रॉम द इंडेक्स, ठीक है। फिर एक होता है आई एल ओ सी, ठीक है, गेट्स रोज और कॉलम्स एट पर्टिकुलर पोजिशन इन द इंडेक्स, ठीक है। उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या है, तो इट ओनली टेक्स इंटीजर्स। फिर उसके बाद आई एक्स यूजली ट्राइज टू बिहेव लाइक एल ओ सी बट फॉल्स बैक टू बिहेविंग लाइक आई एल ओ सी इफ अ लेबल। ये थोड़ा समझ नहीं आएगा, हम इसको करके दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, सर नो, हाँ सर एक बार आई एल ओ सी समझा दीजिए। बेटा, आई देखो, ये एल ओ सी क्या कर रहा था कि पर्टिकुलर लेबल, ठीक है, लेबल फ्रॉम द इंडेक्स। लेबल क्या थे हमारे, जैसे ये लेबल है, ये सब लेबल है ना, इसके लेबल्स हो गए, ठीक। यस सर। अब उसके आई एल ओ सी क्या है, एट पर्टिकुलर पोजीशन इन द इंडेक्स। अब आपको ना इंडेक्स के हिसाब से देखना है, लेबल के हिसाब से नहीं देखना है। बात समझ में आई, मतलब समझिए इंडेक्स लग गया, तो हाँ सर। जैसे अभी तक क्या था, हमको सी और डी चाहिए, जैसे सी डी ई चाहिए था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग उसका इंडेक्स, जैसे सी पे हमारा है 3, तो 3 हमारा इंडेक्स 2 पे है ना। तो हम जब एलओसी लगाएंगे तो हम लेबल से डील करेंगे, और जब हम आई एलओसी लगाएंगे तब हम डायरेक्टली उसके पोजीशन से डील करेंगे, जो उसकी इंडेक्स होगी उससे डील करेंगे। मीन्स कि ऐसे 3 है तो हम उसके लिए 2 बोलेंगे, तब हम सी नहीं बोलेंगे। बात समझ में है? तब हम उससे सिलेक्शन करेंगे इंडेक्स से, ना कि उसके लेबल से। क्लियर यस हुआ? सर। ठीक है। हाँ सर। नाउ अब जैसे कि ये है हमारे पास, इसको हम ले लेते हैं।
ये देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने क्या किया np.nan, ठीक है, हम nan आपको बताया था मैंने, नॉट अ नंबर होता है, तो हमने जो डेटा लिया है वो सिर्फ nan, नॉट अ नंबर, मतलब एक रैंडम डेटा ले लिया कि बस कुछ नहीं है डेटा, ठीक है, डेटा में कुछ है ही नहीं, तो हमने .nan डाल दिया। अब उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि इंडेक्स 49, 48, 47, अब हम देखिए यहाँ पे क्या है, शुरुआत से लेके कहाँ तक कह रहा है, 3 तक, ठीक है, 3 तक, तो हमारे 3 पे क्या है, हम अगर यहाँ पे देखें तो 0, 1, 2, 3 तक तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 हमारा एक्सप्लिसिट होता है, तो 0, 1, 2, तो इस इंडेक्स तक के जो भी चीजें होंगी वो आ गई। सपोज हम np.nan की जगह हम 1 2 3 4 5 कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक लिस्ट बना देते हैं 1, 2, 3, 5, 7, ठीक है, एलिमेंट्स कितने अंदर, 10, 8, 9, 10। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि बिगिनिंग से लेके कहाँ तक जाना है, जो कि उसकी इंडेक्स पोजीशन 2 हो, तो 0, 1, 2, तो 1, 2, 3 किनके साथ हैं, 49, 48, 47 के साथ, तो 49, 48, 47 के साथ ये प्रिंट हो गए जब हमने ILOC किया। तो ILOC हमने क्या पढ़ा था, ILOC हमने पढ़ा था कि गेट्स रोज एट पर्टिकुलर पोजीशन इन द इंडेक्स, तो इंडेक्स हिसाब, सो इट ओनली टेक्स इंटीजर्स। अब समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है ILOC, कि हम इसमें इंडेक्स पास, इसकी ओरिजिनल इंडेक्सिंग पास करेंगे, ना कि उसके लेबल्स। ये सब देखा जाए तो ये लेबल्स हैं, ठीक है, तो हम लेबल्स नहीं पास कर रहे हैं, हम उसकी इंडेक्स पास कर रहे हैं। क्लियर है सैंतन? हाँ सर। ओके, अब हाँ उसके तो सर बाद, मतलब कि सर हाँ दोनों में फर्क इतना है कि उसमें सर हम लोग मतलब जो भी उसको मतलब वो दिया रहता है, मतलब जो भी वैल्यू के साथ उसका दिया रहता है सर, उससे हम लोग करते हैं, और इसमें ILOC में सर मतलब इंडेक्स से करते हैं। हाँ देखो एक ये भी दिखा देते हैं, LOC वाला भी, इसको प्रिंट लगा दें। अब ये देखो LOC और ILOC में अब डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे जो 3 है LOC का 3, अब ये हमारे लेबल के 3 से मतलब कर रहा है, बात समझ में आया? हाँ 3 का सर। जो लेबल है वो ले रहा है। सपोज मैं इस 3 को कुछ और कर दूं, ए कर दूं, ये ऐसे निकलेगा, ये देखो ए तक लिया, ए यहां से देखो, तो हम इसमें क्या है, इंडेक्स जो पास कराएंगे वो इसकी इंडेक्सिंग से मतलब रखेगा, जो हमारा डेटा है ये डेटा की इंडेक्सिंग से ILOC चलेगा, क्योंकि आई मतलब इंडेक्स, ठीक है, तो वो इसका जो ओरिजिनल डेटा है उसके इंडेक्स की बात कर रहा है, ना कि इस इंडेक्स की। बट जब हम LOC की बात करते हैं तो वो हमारे अंदर जो इंडेक्स है उसके जो लेबल्स हैं उन लेबल्स के हिसाब से वो हमारी सिलेक्शन करेगा। अब क्लियर है दोनों का डिफरेंस, सभी को क्लियर है ये? किसी को कोई भी डाउट अभी तक LOC ILOC में? अब ये भी ले लेते हैं, प्रिंट, इसको रन कराते हैं, इस पे अभी नहीं लेगा, एट्रीब्यूट कलर देखिए, अब एरर क्या कह रहा है, सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, ठीक है, तो इसका भी एट्रीब्यूट डिफाइंड नहीं है, जब इसको हम डिफाइन करेंगे तब देंगे। नाउ डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, अब हम आते हैं डेटा फ्रेम पे। सीरीज जो है ये सभी को क्लियर है, कोई डाउट है सीरीज में अभी तक किसी प्रकार नो का? सर। ठीक है,
और आई थिंक सो कि आपको ये हेड एंड टेल इसका यूज़ प्लस ये हम सीरीज़ में कैसे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग से हम करते हैं, प्लस एलओसी और आईएलओसी। ठीक है, जनरली होता क्या है क्योंकि ये एलओसी आईएलओसी थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो कभी कभी इस पे भी एक क्वेश्चन बना देते हैं वो। ठीक है, कि वो डिफरेंस देखने के लिए कि आप आउटपुट सर क्या जनरेट करते हैं। हाँ बेटा, सर एक बार आइए समझा देंगे। देखो इट यूजुअली ट्राइज टू बिहेव लाइक एलओसी, ये एलओसी की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब इसी के काम इसी की तरह करता है, बट उसी तरह बिहेव, बट फॉल्स बैक टू बिहेविंग लाइक आई एलओसी इफ अ लेबल इज नॉट प्रेजेंट। अगर मान लो लेबल नहीं प्रेजेंट है, तुम्हारा लेबल मेंशन्ड नहीं है, दिया नहीं है मेंशन, एक सेकंड होल्ड। हेलो, अभी क्लास चल रहा है, मैं 10 मिनट में कॉल कर। हाँ, तो ये क्या करेगा, तो कि जब लेबल आपका प्रेजेंट नहीं है तो एलओसी में क्या है, हमारा लेबल से काम करता है। अब अगर मान लीजिए एलओसी पे लेबल, मतलब लेबल नहीं है और आप एलओसी देना चाहते हैं, तो आप आई एक्स दे सकते हैं, तो उससे क्या करेगा, ये आई एलओसी की तरह से काम करेगा। और लेकिन आपको जो वैल्यू पास करानी होगी वो इंटीजर वैल्यू पास करानी होगी। समझ में आया? हाँ सर। नाउ, अब डेटा फ्रेम क्या है? डेटा फ्रेम ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम एक्सेल शीट अपनी देखते हैं, तो हम उसमें क्या करते थे, सीरियल नंबर बनाते थे, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, यानी सारी चीज़ें। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस इट इज अ टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं दो डायमेंशन है, एक है वाई एक्सिस और एक है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, जब हम डेटा फ्रेम में काम करते हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि आप किस एक्सिस में हैं। इसमें एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक्सिस एक एट्रीब्यूट भी होता है, मैं दिखाऊंगा भी आगे प्रोग्राम्स में। So it is a two-dimensional data structure just like any table with rows and columns. So basic features क्या हैं? Columns may be of different types. अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई डेटा टाइप होगा और यहाँ कोई डेटा टाइप हो जाएगा। भाई स्टूडेंट नेम ही है तो वो टेक्स्ट ही तो होगा, किसी का स्टूडेंट नेम 1 2 3 4 तो हो नहीं जाएगा। तो एक पर्टिकुलर कॉलम की अगर हम बात करें, कॉलम, तो उसका डेटा टाइप सेम ही रहेगा हमेशा। ठीक है, हाँ रोज में आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स मिल जाएंगे, बट कॉलम का जो डेटा टाइप है वो आपका फिक्स्ड ही होगा। जैसे कि आपने एसक्यूएल में पढ़ा है कि जो हम कॉलम डाल रहे हैं तो उसका तो एक डेटा टाइप फिक्स्ड है, तो उसी तरह कॉलम्स में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देन साइज कैन बी चेंज्ड, मतलब साइज हमारा जो है इसका म्यूटेबल है, मीन्स हम इसकी जितनी भी साइज करना चाहते हैं उतनी बड़ी साइज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, लेबल्ड एक्सेस। अब जैसे हमने आपको बताया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वही इसमें क्या है, लेबल्ड एक्सेस होते हैं रोज और कॉलम्स के। ठीक है, उनको हम लेबल्स देते हैं। देन अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स, और रोज और कॉलम्स में हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सिमिलरली लाइक वी यूज टू परफॉर्म ऑन एक्सेल, जैसे हम एक्सेल पे किया करते थे, सिमिलरली उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर इस तरीके का। अब इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दी कंस्ट्रक्टर क्या, पांडास या पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अब ये देखिए डी कैपिटल रहेगा, एफ कैपिटल रहेगा। ठीक है, स्मॉल में मत लिख दीजिएगा। ठीक है, डी कैपिटल एंड एफ कैपिटल, सो डेटा फ्रेम। आफ्टर दैट ये सारे उसके टाइप्स होते हैं, लेट मी शो यू ऑल। पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर डेटा इज इक्वल टू नन, डेटा होता है, इंडेक्स होता है, कॉलम्स होते हैं। अब ये ऑप्शनल है, देखिए एक्सेस। ठीक है, आपको एक्सेस क्या मेंशन करनी है वो। फिर उसके बाद डी टाइप, ठीक है, उसका डेटा टाइप के लिए क्या है। फिर उसके बाद कॉपी एंड बूलियन, ये सारी इसके फीचर्स हैं। ये देखिए डेटा, इंडेक्स, कॉलम, डी टाइप और कॉपी। आफ्टर दिस डेटा फ्रेम, हाउ टू क्रिएट इट कैन बी क्रिएटेड विद दी फॉलोइंग्स। लिस्ट के साथ हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कई लिस्ट हैं, जैसे कि हम अगर मैट्रिक्स जब बना रहे थे तो हम क्या करते थे, लाइक फॉर एग्जांपल सपोज हमें एक मैट्रिक्स बनानी थी, तो हम एल इज इक्वल टू, अगर हमें इस टाइप की मैट्रिक्स है 1 2 3 4,
ठीक है, इस टाइप की एक मैट्रिक्स अगर बनानी है तो हम क्या किया करते थे, सिंपली एक लिस्ट लेते थे, उसमें हम अब 1 2 है तो पहले हम एक और लिस्ट के अंदर लिस्ट 1 2 फिर कॉमा 3 4 हम ये किया करते थे। इस तरीके से हम लिस्ट बनाते थे तो ये हमारी 2 डायमेंशनल हो जाती थी। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिस्ट के साथ बना सकते हैं, डिक्शनरीज के साथ बना सकते हैं, सीरीज के साथ भी बना सकते हैं। जो सीरीज अभी हमने पढ़ी उन सीरीज के साथ भी बना सकते हैं। देन नम्पी एनडी एरेज के साथ बना सकते हैं, एन डायमेंशनल एरेज के साथ, और एक और डेटा फ्रेम के साथ भी बना सकते हैं। मतलब 2 डेटा फ्रेम को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। तो एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने के इतने सारे तरीके होते हैं, इसमें आपको वैरायटी मिल जाती है। सो हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम, ये सिंपल सा है कि इंपोर्ट पांडाज एस पी डी और df1 आपने ले लिया डेटा फ्रेम और उसके अंदर आपने एक ब्लैंक डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये बाकी इसके बारे में हम लोग कल बात करते हैं। इतना क्लियर था सभी को जो आज हुआ? सर एक बार डेटा फ्रेम वाला बता देंगे? ये डेटा फ्रेम ये हाँ सर, मतलब नहीं सर, नीचे वाला सर, नीचे वाली स्लाइड। ये वाला कैसे बनता है डेटा कि ये वाला? हाँ सर, यही वाला सर। अरे तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये ब्लैंक डेटा फ्रेम है जी। ये अभी हम भी तो यहाँ ब्लैंक ही तो बनाए। अगर यहाँ देखो ये ब्लैंक ही डेटा फ्रेम, तो ये लो देखो ब्लैंक डेटा फ्रेम है, प्रिंट किया, देखो कुछ नहीं आया। एम्प्टी डेटा फ्रेम बता रहा है, एम्प्टी डेटा फ्रेम, ना कॉलम है ना इंडेक्स है, कुछ है ही नहीं उसमें भी। वो अब हम लोग कल करते हैं ना, अभी 4 मिनट बचा है, अभी इसमें हो नहीं पाएगा। तो कल हम लोग इसको करते हैं कैसे डेटा फ्रेम पूरा क्रिएट होगा। ठीक है, आई होप दिस लेक्चर वॉज क्लियर। यस सर।